इतना आसान नहीं होता इतने पावरफुल इंसान को कैच करना या उन तक पहुंचना। तो उजागर की जंग जारी है, जैसे पहले चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में हमने दिखाया था कि वो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश करते रहेंगे अब इसमें भी। और उसके आगे क्या होगा, देखिए डायरेक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया है तो इसके आगे क्या होगा वो आपको शो में देखना पड़ेगा। मेरे पास फिर यही होने वाला है। I don't think I can say much about कि टिंका सिंह के साथ अब क्या होने वाला है, बट सबसे पहले I just want to say thank you to of course Prakash sir and thank you to Gautam sir for giving me this opportunity, and I keep telling people that मैं ऐसे वक्त पे प्रकाश जी के पास गया काम मांगने के लिए जब मेरे पास काम नहीं था और कोई काम नहीं दे रहा था, और प्रकाश जी ने अपना दरवाज़ा खोला मेरे लिए और आश्रम का दरवाज़ा खोला मेरे लिए, एंड it was just absolutely unexpected the kind of love that Ashram got and the kind of love Tinka Singh got in the show, and I'm going to always be eternally grateful for that. I think it's a joint responsibility of the women and the family around them as well. India is a country wherein we kind of get susceptible to magicians, babas, looking for magic to happen through them, or just for a spiritual journey. But spirituality is a lot to do with within. Then to just make somebody a medium, we do need people that we can look up to. But at the end of the day, they're also human beings. And I think that's what we've tried to show here, that don't give somebody the power to rule your life and let go of your own sensibility or intelligence in the process. It feels great that we finally get to have a press meet, because post-pandemic this must be a wonderful thing. The love our show has received, and we all are so elated to be here. Now moving on to the character Babita that Sir has given. Kya bolu? It's very important that we've just seen her like a person who just comes into like a very like she probably uses her prowess and everything to do, but you'll see a lot more this season. And I guess women are given responsibilities, and I'm sure in this season you'll find that they can take over. Yeah. Firstly, thank you all for being here, and thank you for the response to our show. Under the captaincy of Prakash sir, the role of a journalist was easy to play because the inputs he gave me for my character really helped me in playing my character truthfully and honestly. And he is a journalist, and he's that sort of a human being who is practical and selfless. Yes, both of them are giving me quite a tough time. And Prakash ji has in fact given a lot of layers to my character, which would help me face them pretty well. जो धर्म और आस्था की आड़ में कि हमारे यहाँ जो गुरुकुल है, धर्म है, अध्यात्म है, संस्कृति है, और जो गुरु हैं इनकी बहुत गहरी और पुरानी परंपरा है, और चूंकि वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, इसलिए आम आदमी आसान तरीका ढूंढना चाहता है अपनी इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए, और उस खोज को, उस विश्वास को बरगलाने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए ऐसे हमारे बीच में से कई लोग खड़े हो जाते हैं और गुरु बन जाते हैं। इनको खुद का ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को ज्ञान देने चाहिए। तो लगभग इन सबों के चरित्र ऐसे ही हैं, चाहे वो आपने जिनका नाम लिया वो या और भी कोई बहुत सारे हैं, उनके चरित्र ऐसे ही होते हैं। वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यभिचार, इस तरह की विकृति उनके व्यवहार में जो है वो होती ही है। तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्स तो मिल ही जाए। हमने हमेशा ये मेंटेन किया कि हमने किसी एक को ख्याल रख के उसकी जीवनी या उसके कर्मों पे नहीं बनाया। इसमें सबके थोड़े थोड़े जो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं उनको समझते हुए, रियलिटी को नजर में रखते हुए फिक्शन क्रिएट किया है कि इसके ताने बाने किस तरह से काम करते हैं, इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल। थैंक्स टू प्रकाश जी और गौतम जी, क्योंकि प्रकाश जी ने जब हमारा पहला ट्रेलर आया था फर्स्ट सीजन का तो बहुत प्यार मिला था, और उसके बाद हमारे आश्रम ने थैंक्स टू MX Player और गौतम जी जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए OTT प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे आपने कहा कि सारे फैंस किसी चीज़ की भी प्रमोशंस चल रही हो सबसे पहले पूछते हैं कि आश्रम 3 कब आ रहा है। कोई पोस्ट डालो सोशल मीडिया पर, सबसे पहले पूछा जाता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है। सो इस तरह का प्यार मिला है। तो इस सीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शोल्डर्स पर कि और मेहनत करनी है, क्योंकि इतना प्यार मिला है लोगों से, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। सो हमने कोशिश की है, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट एपिसोड देखा और आपको पसंद आया, और जिस तरह का हमारे ट्रेलर को प्यार मिल रहा है, कुछ ही दिनों में कितने मिलियंस को क्रॉस कर चुका है, और हर इंसान वेट कर रहा है 3 जून का।
सो उसके लिए हमने जी जान से मेहनत की और फिंगर्स क्रॉस, हमें उम्मीद है कि इस बार भी लोगों को उतना ही, उससे बल्कि 3 गुना ड्रामा देखने को मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा और वो एंजॉय करेंगे इस शो। No, I just genuinely believe that cinema reflects society and society reflects cinema, and I think that is important to understand. And if we are managing with this story to tell what we want to tell, and even if 2 people understand what is being said, and there is an impact created, I think that's great for us. I think that is important, and it's genuinely a reflection of both. I think it just works to both sides always. I would like to add something about this. मेरी फैमिली में मेरे पिताजी एक आश्रम है, माँ आनंदमयी माँ का, हरिद्वार में, दिल्ली में, हर जगह पे है। तो जैसे सर ने इनसे पूछा कि आप यू हैव टू हैव फेथ और बिलीव, आपको पता चलना चाहिए कि आपसे कोई क्या इन रिटर्न ले रहा है। सो आई हैव फेथ, आई डू गो टू माँ आनंदमयी आश्रम एंड इट्स डन मी गुड बिकॉज आई बिलीव इन इट। एंड सो मैं नहीं बोलूँगी कि हर बाबा ढोंगी होते हैं या कैसे होते हैं या क्या होता है। सो इट इज अबाउट व्हाट यू आर गोइंग देयर फॉर एंड व्हाट इज योर पर्पस। यहाँ पर सेंटर या मैम यहाँ पर सेंटर यहाँ पर मैम यहाँ पर सर लुक किया सर यहाँ पर सर आपके सामने सेंटर लुक किया